ایک پیغام ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام میرا نہیں توحید کا ہے میرے بھائیوں۔ وہ پیغام اللہ نے آپ کو دیا ہے، جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا پیغام سنا دوں میں؟ اگر صدر کا پیغام آئے تو آپ یہ پورے رجوع میں کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے کہ میرے پاس صدر کا پیغام آیا ہے، یہاں توحید کا پیغام آیا ہے۔ وقت زیادہ نہیں لینا، بالکل سی تھوڑا سی، بالکل پتہ نہیں لگے گا، میں چھوڑ دوں گا سی، حاضری ہو گئی سی۔ خالق ایک پیغام ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خالق پورے قرآن میں یہ آیت کریمہ جو میں نے 20ویں پارے کی پڑھی ہے، ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں، ورنہ آیتیں 6666 آیتیں، اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ ایک اور بھی آیت بھیج سکتا تھا، اللہ نے ایک آیت بھیجی۔ وہ آیت نہیں، ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام صرف 10 منٹ مجھ سے سن لیں، ختم۔ من جاء بالحسنۃ، فرمایا لوگوں جنہیں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تم نے دنیا میں سب کچھ کیا، اور میں نے تمہیں دین بھی دیا اور شریعت بھی دی اور آئین دے کے کہا میرا کہنا مانتے چلے جاؤ، میرے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نمازیں واجب کی، روزے واجب کیے یا نہیں؟ روزے پڑھوائے حکم سے، روزے رکھوائے، نمازیں پڑھوائیں حکم سے، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ وہ 5 مرتبہ نمازیں واجب کی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے لوگوں، اس دنیا سے جب تم اس دنیا میں آؤ، کوئی اور شے نہ لے کے آؤ، صرف من جاء بالحسنۃ، وہاں سے ایک نیکی لے کے آؤ۔ میرے خیال اچھی لگنی چاہیے، نیکیاں نہیں، نیکیاں نہیں، کروڑوں نیکیاں ہیں میرے بھائی۔ فرمایا کروڑوں نہیں چاہیے، ایک نیکی چاہیے۔ اس ایک نیکی کو جو لے کے آئے گا نا اس دنیا میں، فرمایا اس کے لیے کیا دوں گا؟ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کی باقی جتنی نیکیاں ہوں گی میں قبول کر لوں گا۔ گل اچھی نہیں لگی؟ ہائے ہائے، ابھی کے ماحول میں اب اسماء سر سیکھتے ہیں، سر زیادہ سنتے ہیں۔ وہ پتر یہ بھی سر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ میری سر نہیں، یہ توحید کا کلام ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا حیدری یا علی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نیکی نہ لے کے آؤ، بالحسنات، حسنہ مانے ایک نیکی، حسنات نہیں۔ اللہ کہتا ہے میری پوری دنیا میں، عالمین میں ایک نیکی لے کے آؤ۔ جب تم وہ ایک نیکی لے کے آؤ گے، اس کا پہلا انعام یہ ہوگا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تمہاری باقی جتنی نیکیاں ہوں گی وہ میں قبول کر لوں گا۔ خوش ہو گئے میرے بھائی؟ نمبر 2، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کے دن جتنا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، وہ نیکی لے آنے والا کبھی بھی نہیں ڈرے گا۔ آمنون، وہ امن میں ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحبان بصیرت، اور یہ رجوع سادات، آپ کو نہیں علم، آج سے 50 سال پہلے یہ مرکز تھا آپ کا پورے پنجاب کا۔ صحیح، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے، میں کیا کروں۔ اس مرکزی جگہ میں کہنا چاہتا ہوں، جب ایک نیکی اللہ کہہ رہا ہے آؤ سارے مل کر، ہم ڈھونڈتے ہیں وہ ایک نیکی ہے کیا؟ غور نہیں فرما رہے۔ ایک نیکی ڈھونڈتے ہیں میرا پتر، آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں۔ اگر آپ ہو جائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، ورنہ ڈھونڈ کے تو میں لے آیا ہوں نا۔ آپ کو تکلیف نہیں دیتا، صرف آپ سننے میں میرے ساتھ ہو جائیں۔ ایک نیکی ڈھونڈنی ہے میرے بھائی، وہ ایک نیکی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، میں اپنے تمام بھائیوں کو بھی سنا رہا ہوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم پہنچ گئے نماز پر۔ ہائے، بات نماز کی آئی، ہائے 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 ہائے، نماز پہ جب آئے نا، اب ہم دیکھتے ہیں وہ ایک نیکی نماز ہے۔ اور میرے پاس دیکھے نا،
वो एक नेकी नमाज है। अब हम उस नमाज को देखते हैं कि अकेली फुरू नमाज अकेली नहीं, नमाज के साथ रोजा भी है, नमाज के साथ रोजे के साथ हज भी है, हज के साथ जिहाद भी है। वो अकेली नहीं आई नमाज। अल्लाह ने कहा एक नेकी लेके आए। वो एक नेकी अगर नमाज होती तो अल्लाह बराबर का रोजा वाजिब न करता। कर दुनिया समझ रही है मेरी बात? अगर एक नेकी, जल्दी से एक नेकी नमाज होती, अल्लाह रोजा वाजिब न करता। है रोजे या नहीं, वाजिब है या नहीं, ना करता। अगर रोजा एक नेकी होती, हज वाजिब ना करता। अगर हज एक नेकी होती, जिहाद वाजिब ना करता। इनका वाजिब होना दलील है कि ये एक नेकी नहीं। सियाने बने मेरे पुत्र, सियाने बने। एक नेकी न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। पूछा गया मौला, जब नमाज रोजा ये एक नेकी नहीं तो फिर एक नेकी है क्या? मेरे आका ने फरमाया, मैं सुनाना चाहता हूं, फरमाया वो एक नेकी विलायत अली इब्न अबी। वो नहीं समझ आई दुनिया को? वो एक नेकी क्या है बाबा? खत्म से हैदरी। वो एक नेकी क्या है? विलायत अली। सुना दूं? विलायत किसी पाक दिल में आ ही नहीं सकती जब तक कि उसमें हुब्बे अली न हो। रसूल फरमाते हैं मेरे भाइयों, अली अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम पैदा ही ना करे। ऐसा है या नहीं मेरे भाई? जल्दी भाई, बिल्कुल जल्दी, जहन्नम पैदा ही ना करता। ठीक, एक शख्स जनाब अली आ रहे हैं, रसूल खड़े होके ताजीम करके ये जुमला कहते हैं, अली अगर एक शख्स उहुद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में दी, तुसी तुहानू नहीं मिलना। सारे देख रहे हो मेरी तरफ। सोना दे राह खुदा में, अल्लाह जाने कितना सखी हो सकता है जो इतना सोना राह खुदा में दे। फरमाया इतनी नमाजें पढ़े कि उसकी कमर झुक जाए, और इतनी रोजे रखे कि पेट सीने के साथ लग जाए, और सफा और मरवा के दरमियान में बेगुनाह कत्ल भी कर दिया जाए। आए अली अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं, जन्नत बजाए खुद खुशबू जन्नत नहीं सूंघ सकता। अब क्या जरूरी हो गई बाबा? हुब्बे अली। इसीलिए अल्लाह ने कहा रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना। ये आई लफ्ज़ हसना ये नहीं, ऐ हमारे रब हमें इस दुनिया में भी हसना अता कर, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी यही नेकी अता कर। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, क़यामत में नमाजें नहीं होंगी, ये नेकी होगी। सॉरी नहीं फरमा रहे, रोजे नहीं होंगे, ये नेकी होगी। हज नहीं होगा, ये नेकी होगी। फिर वो एक नेकी नमाज रोजा नहीं, वो एक नेकी विलायत अली इब्न अबी तालिब। बस हसना माने लंबी बैठा भाई, घंटों के मौजू होते हैं, अब तो मिनटों में पढ़ना है। एक नेकी विलायत अली अलैहिस्सलाम। जब एक नेकी तो फिर ढूंढो, मेरे भाई तशरीफ रखते हैं, आप सारे हजरात ढूंढे वो कौन खुश नसीब है जो एक नेकी ही लेके गया है। ठीक है, जल्दी से। वो एक खुश नसीब कौन है जो एक नेकी लेके गया है? जो एक नेकी लेके गया, कोई दूसरा अमल लेके नहीं गया। उस नेकी ले जाने वाले को हुर कहते हैं। कौन नहीं फरमा रहे आप? क्या लेके गया? एक नेकी लेके गया या नहीं? जब इमाम की खिदमत में गया ना, सर रखा कदमों पे, हल्ली तौबा, तुम बोला मेरे लिए तौबा है। इमाम ने फरमाया अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी हुर है और आखिरत में भी हुर है। हाय एक नेकी लेके गया, कौन? हुर। इमाम ने कहा हुर तेरे पास ऐसी नेकी है, मेरे पीछे नमाज ना पढ़,
नाराज हूँ जो यार लाहौर में नाराज हुए लोग, मेरे पीछे नमाज ना पढ़ो, जाके शहीद हो जाओ। शहीद इमाम ने अपने सामने हुर को करा के हमें बताया, लोगों शहादत नमाजों से नहीं मिलती, हुब्बे अली से मिलती। और समझ आइए मेरा पुत्र, बात खत्म से हैदरी, हुब्बे अली लेके जाओ बस। इसके आगे आयत है, मैं ज्यादा वक्त न लूं, अगली आयत है हुब्बे अली क्या है? एक नेकी। अब अल्लाह कहता है वमन जा बिस्सय्यअति, जो एक बुराई लेके आए। अजनी समझ आई? आ गई ना पुत्र है? एक नेकी समझ आ गई ना, वो है हुब्बे अली। अब अल्लाह कहता है जो एक बुराई इस दुनिया से लेके आए, चोरी चिकारी नहीं है, एक बुराई लेके आए। अल्लाह कहता है फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, कादिर अल्लाह कहता है उसे जंजीरों से बांध के मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। अरे अल्लाह तू कादिर है ही नहीं, कादिर है ना, उसको किस में डालना है? जहन्नम में, और वो भी बांध के। जिसे अल्लाह बंद हुआ है, खुदा जाने कुदरत कहाँ गई। अल्लाह कह रहा उन्हें बांध के ना, ठीक है। अब जब एक नेकी थी हुब्बे अली, अब आप फरमाएं वो एक बुराई क्या है? समझ आ गया तो मैं यही बात खत्म कर देती। एक नेकी है हुब्बे अली और एक बुराई है बग़ज़ अली। शुक्र है समझ आ गई इतनी, बहुत बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। एक बुराई है बग़ज़ अली। अब अल्लाह भी कह रहा है उसे बांध के जंजीरों में है, मुंह के बल जहन्नम में डालो। अरे अल्लाह मैं कहूँगा मौला इनको कहें फरिश्तों को इनकी टांगें पकड़े हैं, फेंके सीधा जाए जहन्नम। आप फेंकेंगे, चुने चुने लोग फेंकेंगे, नाम लिखवा लो आज से। गौर नहीं फरमा रहे, पर मैंने क्या कहा आपने समझ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? पकड़ के ना फेंके ना, फरिश्ते फेंके जाके जहन्नम में गिरेंगे। मौला ये बांध के मुंह के बल क्यों डाले जहन्नम में? कहा सबसे पहले आग की तपिश इन आंखों और कानों को पड़े, ये बताने के लिए आंखों जब तूने हक देखा था वह माना क्यों नहीं? है कानों जब हक की बात सुनी थी खत्म, पहचाना क्यों नहीं था? ठीक है, एक शख्स है जिसकी उम्र देखिए अभी सही मेरे से पहले पढ़ के गए 80 साल उसकी उम्र है, 80 साल। हिल्ला की गलियों में उसका नाम है अबू राजे हम्मामी, खत्म से अबू राजे हम्मामी गलियों में हिल्ला की कहता है, लोगों दौड़ दौड़ कर गलियों में कहता है अली हक। आपको अच्छा नहीं लगा है? घर में बैठ के कहना अली हक और है, गलियों में आके कहना और है। जब उसने अली हक का नारा लगाया, जो हमारे दूसरे थे जो जनाब अली जो अच्छा नहीं समझते थे, वो आके हाके में हिल्ला के पास जिसका नाम था मरजान सगीर, उसके पास आए और आके कहा इससे हमारी दिल आजारी होती है, आप इन्हें बुला के रोकें कि ये ना कहें। बुलाया, अबू राजे आके खड़ा हो गया। मरजान सगीर ने कहा तुम अली से मोहब्बत रखते हो? चल करो, यही तवज्जो चाहिए। इसी तरह अली से मोहब्बत रखते हो? जनाब ने फरमाया ये आईने दीन है, आईने दीन ही का नाम मोहब्बत अली है। कहा इसे तौबा करो। फौरन जनाब अबू राजे हमामी कहते हैं वो बेवकूफ, तौबा गुनाह से होती है। अली की मोहब्बत आईने दीन। जब तमाम के सामने ये कहा, उसके हाथ में एक सोटी है, उठ के मारना शुरू किया, लहू लुहान कर दिया, जख्मी हो गया, दांत टूट गए। हाय, इतना जख्मी 80 साल का हुआ कि इसने उसकी जबान में लोहे की तार डाल के और उसके साथ रस्सी बांध के लोगों से कहा कि इन्हें पूरे बाजार में जाके इसी तरह फिराओ। लोग फिराने जाके, बस आखिरी बात
फिराने लग गए, फिरा 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 के हाय जब वापस ले आए ना, अबू राजे हमामी करीब था कि खड़े खड़े मर जाए, आके सामने खड़ा हुआ, कहा इसको कत्ल कर दो। जो साथी बैठे थे उन्होंने कहा नहीं, क्यों कत्ल करता है, ये तो अभी मरने वाला, देखिए 80 साल का बूढ़ा, इतना जख्मी, इतना खून इसका निकल गया, अभी जाके मर जाएगा, भेज दो जाके, तेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम ना आए। वरसा से कहा जल्दी जाओ, इन्हें घर ले जाओ। जो ही घर ले गए, मेरी तरफ देखे बाबा खत्म, जो ही घर ले गए, जब सुबह सवेरे हुआ, वही शिकायत करने वाले क्या देखते हैं कि 20 साल का जवान हो के अली हक कह रहा, बस खत्म। जब उन्होंने आके कहा वो तो जवानी मिल गई उसको, कहा उसे बुलाओ, आके बुलाया, बिठाया कुर्सी पे, कहा क्या हुआ, कहा कल तूने जिस हालत में मुझे भेजा, मैं घर गया, मैंने अपने घर वालों से कहा मेरा रुख सामर्रा की तरफ कर दो। सामर्रा जानती है शादी, हम तुहानू दे दें, तुसी आओ जी, आ जाओ, समझ आइए। आखिरी गल खत्म, ऐसा ही बैठन तो मैं खत्म कर दूं। देखने सारे ऐसी गल सारे आए हैं, बस जो ही मैं सुबह रात तूने मुझे भेजा, मैंने अपने सामर्रा 12वें इमाम से कहा मौला मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, आज अगर तूने मेरी मदद ना फरमाई, भिल्ले वाले कहेंगे इनका कोई है ही नहीं। फरमाया मैंने कहा, फौरन ही एक जीशान मेरे सामने आके खड़ा हो गया, जो ही सामने आया ना, उसने लबू को हरकत दी ना, मैंने देखा मेरे दांत ठीक हो गए, वो जो दांत नहीं थे दांत आ गए, मैंने देखा जख्म खत्म, मैंने अपने जिस्म में ऐसी ताकत देखी, हैरान होकर मैंने अपने आप को कहा ये क्या हो रहा है। आखिरी जुमला उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया हैरान क्यों हो रहा है, हमने तुम्हें 20 साल का जवान बना दिया और 60 साल और जिंदगी दी है, और जाके गली गली में कहो अली हक। आखिर दावा